Hello, my dear students of class 8. Let us start today's class. Class English subject है 8th है The Tsunami. Today's lesson is Tsunami. तो let us start this lesson और देखते हैं सुनामी का नॉलेज क्या है सुनामी. Now the read the sentences below, rewrite the incorrect ones after correcting the mistakes. ठीक है, इसको आपको सेंटेंस दिए गए हैं. A tsunami is a very large and powerful wave-caused earthquakes under the sea on 26 December 2024. A tsunami hit Thailand and parts of India such as Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Here are some of the stories of courage and survival. कह रहे 26 दिसंबर 2004 को सुनामी जो है समुद्र में आए हुए अर्थक्वेक को कहते हैं, और जो भूकंप समुद्र के अंदर आता है बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं उसको सुनामी कहा जाता है. कह रहे 26 दिसंबर 2004 को एक बहुत बड़ा सुनामी आया जिसने थाईलैंड को हिट किया था, भारत के भी कुछ पार्ट्स को हिट किया था. उसमें जो लोग अपने करेज, हिम्मत और साहस और कैसे वो जीवित रहे उनकी कहानी यहाँ पर है. Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did. क्या एनिमल्स इस बात को पहले ही जान गए थे कि सुनामी आ रहा है? अगर ये सच है तो इस कहानी में देखते हैं. पार्ट 1. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. His wife woke up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. कह रहे हैं कि ये अंडमान निकोबार जो कि एक द्वीपों का समूह है, बंगाल की खाड़ी में पड़ता है हमारा प्रदेश भारत का. वहां की पहली बात बता रहे हैं कि इग्नेशियस जो था एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कच्चाल में मैनेजर था. 6 बजे उसकी पत्नी उसको जगाती है क्योंकि अर्थक्वेक आ गया. इग्नेशियस बड़े आराम से अपने टीवी को रख देता है और उसके बाद ताकि वो गिर के टूटे ना, पूरी फैमिली घर से बाहर हो जाती है. When the tremors stopped, they saw the sea rising. In the chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother, and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 other children who came with him were saved. अब कह रहे इग्नेशियस के 2 बच्चे उसके मदर और उसके फादर के साथ बह गए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे. बड़ी लंबी लंबी लहरें उठ रही थी और उसकी वाइफ भी बह गई इग्नेशियस की, और 3 बच्चे जो उसके साथ थे वही बच्चे. और संजीव was a policeman serving in the Kachal Island of the Nicobar group of islands. He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves, but then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. अब कह रहे संजीव जो एक पुलिसमैन था कच्चाल आइलैंड में, वो अपने आप को, अपनी वाइफ, अपने बेबी डॉटर को तो बचा लेता है, लेकिन उसी समय उसके जो गेस्ट हाउस कुक है उसकी बीबी, उसकी वाइफ चिल्लाती हेल्प के लिए, उसको बचाने के लिए पानी में जंप करता है, लेकिन वो दोनों ही बह जाते हैं. इतनी बड़ी बड़ी समुद्र की लहरें उठती हैं. 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea holding on to a wooden door. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they didn't see her. She was brought to the shore by a babe and was found walking on the seashore in 8 days. अब यहाँ एक 13 साल की मेघना की बता रहे हैं कि वह, उसके माता पिता और 77 और लोग कैसे मतलब बह गए, और सी स्पेंट कैसे वो 2 दिन तक समुद्र में ही तैरती रही एक लकड़ी के सहारे. उसने 11 बार हेलीकॉप्टर्स जो आ रहे थे ऊपर से बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए उसने आवाज दी, लेकिन उन लोगों ने उसको नहीं देखा, और एक लहर के द्वारा, एक वेव के द्वारा उसको किनारे लाया जाता है. और Almash Javed was 10 years old. She was a student of
Carmel Convent in Port Blair, where her father had petrol pump. Her mother, Rahila's home was in Nancowry Island. The family had gone there to celebrate Christmas. कह रहे हैं अल्मास जावेद 10 साल का एक लड़का है। सिवा स्टूडेंट है कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर में। उसके पिताजी के पास पेट्रोल पंप है। उसकी माँ राहिला जो है नानकेवी आइलैंड में उसका घर था। वो लोग क्रिसमस मनाने के लिए वहाँ पर गए थे। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. Almas's father saw the sea water recede. He understood that the water could come rushing back. With great force, he woke everyone up and tried to rush them to a safer place. अब जब वो झटके आए तो उनके पिताजी कह रहे हैं जग गए सुबह में, और उन्होंने देखा कि जो समुद्र का पानी है वो रिसीड माने कम हो रहा था, पीछे जा रहा था समुद्र में। और उन्होंने समझ गया कि अगर ये समुद्र में जा रहा है अंदर तो अभी बड़ी तेजी के साथ ये वापस आएगा। पूरी फैमिली को उन्होंने जगाया, एक सेफ स्थान पर वो चले गए। As they ran, her father was hit on the head by something and he fell down. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. कह रहे जब वो जा रहे थे उनके ग्रैंडफादर के सिर पर चोट लगी। उनके फादर, उसका जो फादर था माने इसका अल्मास जावेद का, दौड़ा उसको हेल्प करने के लिए अपने पिता की। एक बड़ी सी लहर आती है और दोनों बह जाते हैं। ये कहानी है कि कैसे वो वेव्स जो हैं, तो सुनामी की वेव्स कितनी पावरफुल स्ट्रांग है। लाइव्स पूरी जिंदगियां निगल जा रही हैं। आप देख रहे हैं जो किसी को रेस्क्यू करने हेल्प करने जाता है उसको तो नहीं कर पाता है, स्वयं भी चला जा रहा है। Almas's father, mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. Almas के कह रहे हैं जो मदर और उसकी आंट थी वह एक कोकोनट ट्री को पकड़े हुए थे, उसकी पत्तियां कस के पकड़े हुए थे, लेकिन एक लहर आती है पूरा पेड़ ही उखड़ जाता है और दोनों के दोनों बह जाते हैं। Almas saw a log of wood floating. She climbed on it. Then she fainted. When she woke up, she was in a hospital in Kamorta. From there, she was brought to Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. अल्मास जो है वह एक लकड़ी के लट्ठे पर तैरते हुए पकड़ ली थी। वो किसी तरह से उस पर चढ़ गए, उसके बाद बेहोश हो जाती है। जब आंख खुली तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। आज भी वो लड़की इतना डरी हुई है, किसी से इस घटना के बारे में बात नहीं करती। तो यहाँ पर देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक में कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इनके ट्रू फॉल्स ही बताने हैं। जैसे इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। ट्रू है भाई, सब कुछ खो दिया इग्नेशियस ने। संजीव मेड इट टू सेफ्टली आफ्टर द सुनामी। संजीव जो है एकदम सेफ था सुनामी के बाद, नहीं हो तो खुद ही बह गया था बचाने में। मैग्ना वाज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर। ये भी फॉल्स है, कहाँ मैग्ना को बचा पाए। 11 टाइम्स बुलाई लेकिन वो उसको देखे ही नहीं। अल्मास's father realized that a tsunami was going to hit the island. अल्मास के जो फादर थे उनको लगा कि कोई सुनामी आने वाली है, ये सही ही है। और mother and aunts were washed away with the tree that they were holding on to. ये भी ट्रू है। उसके माता पिता, उसके मम्मी और आंट जो पेड़ पकड़ी थी पूरे पेड़ के साथ बह गई। ये कहानी है पहली जो आप कहाँ की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो आइलैंड ग्रुप्स हैं। अब आप दूसरी कहानी आती है पार्ट 2 में। टिली स्मिथ ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक Phuket Beach in Thailand. When she has won a number of awards. Her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? कह रहे हैं टिली स्मिथ की एक कहानी है जो एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी। उसने बहुत सारी सुनामी के दौरान बहुत सारी फुकेट बीच पर थाईलैंड बहुत लोगों की जिंदगियां बचाई थी। बहुत सारे अवार्ड उसको दिए गए, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि कोई उसको इंटरव्यू ले और टेलीविजन पर उसको दिखाए, उसको हीरोइन नहीं बनाना चाहते हैं। ऐसा क्यों उन्होंने डिसीजन लिया, देखते हैं। नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वे आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिसोर्ट इन सदर्न Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7 years old.
देयर पेरेंट्स वेयर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। इसमें कह रहे हैं कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड से आया हुआ एक स्मिथ फैमिली थी और वो क्रिसमस मना रहे थे एक बीच पर, सदर्न थाईलैंड के रिसोर्ट में बीच पर मना रहे थे क्रिसमस। और टिली स्मिथ एक 10 साल की, जबकि उसकी बहन 7 साल की है और उनके माता पिता का नाम है पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। It was 26 December 2024. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. कह रहे 26 दिसंबर 2004 की बात है, भयंकर माने सुनामी आ रही थी और उसी समय सुमात्रा में एक भूकंप भी आ गया, माने उसमें और आग में घी का काम कर दिया। The water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. अब यहाँ पर कह रहे पेनी स्मिथ कह रहे मुझे याद है उस दिन मैंने बीच जो था वो धीरे धीरे छोटा हो रहा था क्योंकि पानी उसको कवर कर रहा था और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा था। But Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson he had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. लेकिन कह रहे हैं टिली स्मिथ को तुरंत याद आ गया वो ज्योग्राफी लेसन जो अभी उसने 2 सप्ताह पहले ही सुन रखा था, कैसे उसके ज्योग्राफी टीचर ने बताया था सुनामी के बारे में। Tilly saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and form whirlpools. She remembered that she had seen this in class video of tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. कह रही ये घटना थी 1946 के हवाई आइलैंड पर जो सुनामी आई थी 1946 में, तो उसके टीचर ने बताया था कैसे सुनामी हो सकती है अर्थक्वेक के द्वारा, भूकंप या वोल्केनो जो होते हैं ज्वालामुखी के द्वारा, या कोई लैंडस्लाइड बहुत बड़ा होता है समुद्र के अंदर, ये सारी चीजें रीजन हो सकती हैं सुनामी की। Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical, said her mother Penny. उसकी पैनी ने कहा कि वो बहुत घबरा सी गई, उसने तुरंत कहा कि बीच को खाली किया जाए, चिल्लाने लगी। I did not know what a tsunami was. मुझे नहीं पता था सुनामी क्या, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. तुरंत उसकी माँ ने कहा मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन चूंकि वो इतना डरी हुई थी तो मैं भी डर गई, कुछ तो जरूर है। और उसके पेरेंट्स तुरंत अपनी उसकी सिस्टर को लेकर वहां से बीच से हट गए। A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run! और बहुत सारे और लोग भी वहां से हटे। तभी जैसा कि हुआ था, लगा कि जैसे पूरा समुद्र ही आ रहा है किनारे बीच पर, और मैंने चिल्लाते हुए कहा भागो, रन! The family took refuge in the 3rd floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. The Smiths later met other tourists who had lost entire families thanks to Tilly and her geography lesson. They had been forward. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. कह रहे हैं कि हम लोग होटल के तीसरे माने मंजिले पर गए और वहां से देखा कि सुनामी की 3 भयंकर वेव्स आई, लहरें आई, लेकिन चूंकि वो बहुत मजबूत होटल था हम सब के सब बच गए। और जो स्मिथ फैमिली थी उन्होंने बाद में बहुत सारे लोगों से मिले जिनकी पूरी की पूरी फैमिली बह गई थी वहां पर। उसने कहा थैंक्स टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन को, जिसने बहुत पहले ही चेतावनी हम लोगों को दे दी। और जब टिली वापस इंग्लैंड गई थी, ये कहानी उसने अपनी भयंकर कहानी अपने क्लासरूम में शेयर की। यहाँ कॉम्प्रिहेंशन चेक में क्वेश्चंस हैं, कुछ देख लेते हैं। व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड? क्यों आई थी टिलीज की फैमिली? भाई टिलीज फैमिली हैड कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। व्हाट वेर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर saw? तो both were saw the sea rise and it started to foam and form whirlpools. यही देखा था उन लोगों ने। और do you think Tilly's mother was alarmed by them? No, Tilly's mother was not alarmed by. नहीं, टिली की मदर को कोई असर नहीं हुआ था, तो it was Tilly.
और where had टिली seen the sea behaving in the same strange fashion, कहाँ टिली ने इसको देखा था कि समुद्र ऐसे भी एक्शन या रिएक्शन कर सकता है। दे वांटेड, ठीक है, टिली हैड सीन द स्ट्रेंज सी बिहेवियर इन ए वीडियो। और क्वेश्चन नंबर 5 है, वायर डिड स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी, से बचने के लिए कहाँ जाते हैं? तो देखिए भाई, दे वेंट टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल एंड वेयर सेव्ड, वहां गए और बच भी गए। वायर डिड द स्मिथ फैमिली, अच्छा लास्ट है, हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट? शी फेल्ट वेरी प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड, उसको बहुत अच्छा लगा। देखिए पढ़ाई लिखाई का कितना बेनिफिशियल होती है स्टडी हमारे लिए माय डियर स्टूडेंट्स। अगर टिली स्मिथ ने अच्छे से नहीं पढ़ा होता और वीडियो ज्योग्राफी का नहीं देखा होता तो वो तो जाती ही, साथ में पूरी फैमिली और ना जाने कितने लोग जान गंवा बैठते। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप लर्न करिए वॉट एवर सब्जेक्ट यू आर लर्निंग और टीचिंग, वॉट एवर सब्जेक्ट यू आर लर्निंग ना। लुक, थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है इसका ये। Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. कह रहे हैं एक बच्चा है, उसके डॉग है, उसको आप देखिए, उसके बारे में लिखिए। This is how you can start calm blue sea ruined huts, मतलब आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते, शांत नीला समुद्र, बर्बाद झोपड़ियाँ। Before the giant waves slammed into the coast in the India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was happened. कह रहे इससे पहले वो जायंट वेव्स जो थी भारत और श्रीलंका के तटों पर टकराए, जानवरों को पहले से पता हो गया था। They fled to safety according to eyewitness accounts. Elephants screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into the shelters and could not be enticed to come back out. कह रहे एलिफेंट जो है ऊंचे स्थानों पर चले गए, कुत्ते उस दिन घर से बाहर नहीं निकले, फ्लेमिंगो भी अपने ब्रीडिंग एरिया से कहीं चले गए, जू एनिमल्स जो थे वो सेफ जगह पर चले गए और उस दिन वो वापस ही नहीं आए, मतलब निकले ही नहीं। Many people believed that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. अब बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो जानवर होते हैं ना, इनके छठी इंद्री होती है, हमारे आपके 5 सेंसेस होते हैं, उनके छठवीं होती है, जिससे वो किसी भी घटना को बहुत पहले जान लेते हैं। Some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. अब कुछ लोगों का कहना है कि जो जानवर होते हैं उनके पास सुनने की एक अद्भुत क्षमता होती है, इसलिए पृथ्वी के कंपन को पहले महसूस कर लेते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, मनुष्यों से बहुत पहले वो इस बात को एहसास कर लेते हैं। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not animals have been reported dead. कह रहे लेकिन वो सुनामी जिसने 1.5 लाख लोगों को 12 देशों में, मतलब दर्जनों देशों में मारा था, शायद ही कोई जानवर मरा हो, बहुत कम जानवर मरे थे, जबकि जानवर भी तो रहे होंगे। Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. कह रहे इंडिया के कुडलोर कोस्ट पर जहां पर हजारों लोग मर गए थे, वहां सारे जानवर करीब करीब सेफ ही थे। The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the Patangala beach inside the park, but no animal carcasses were found except for 2 water buffaloes. कह रहे हैं सिर्फ 2 पानी वाली भैंसों को छोड़ करके श्रीलंका के याला नेशनल पार्क में, जहां पर 60 विजिटर्स माने 60 लोग मर गए थे, कोई जानवर भी वहां नहीं मरा हुआ था। याला नेशनल पार्क जो है बहुत मशहूर है श्रीलंका में, जहां पर बहुत सारे एलिफेंट्स, लेपर्ड्स और 130 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। इतने सारे लोग मारे गए लेकिन जानवर नहीं मरे। About an hour before the tsunami hit, people at Ayala National had observed 3 elephants running away from the Patangala beach. वहां कह रहे याला नेशनल पार्क में जो वहां प्रत्यक्षदर्शी, उन्होंने बताया कि मैंने देखा 3 हाथी जो थे वो भागते हुए जा रहे थे पटंगला बीच से। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale
Gale said his two dogs would not go for their daily run on the beach. They were usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. कह रहे श्रीलंका के एक जेंटलमैन ने बताया कि वो जो गाले आइलैंड है गोल माने कोस्ट नियर माने उसके तटीय इलाके पे गाले था, वहां पर उसके दो कुत्ते डेली बीच पर जाते थे घूमने के लिए, लेकिन उस दिन बहुत मैंने कोशिश किया लेकिन वो दोनों बाहर निकले ही नहीं घर पर, और जब वो नहीं गए तो मैं भी नहीं गया, उन्होंने अपनी ही नहीं मेरी भी जिंदगी बचा लिया, और यहीं पर ये लेसन आपका समाप्त हो गया। क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसका। इन द सुनामी 1000 हाँ 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मेनी एनिमल्स डाइड, कितने एनिमल्स मरे थे भाई, तो वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड, बहुत कम मरे थे। हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क, कितने मरे थे, 60 विजिटर्स एंड 2 एनिमल्स, 60 वो मरे थे, 2 ये हुए। व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क, क्या कह रहे थे लोग वहां के बारे में, ठीक है, इसके बारे में क्या कह रहे थे वहां पर, यस तो यहां पर पीपल से दैट द एलिफेंट्स रैन फ्रॉम द बीच एन आवर बिफोर द सुनामी हिट द कोस्ट, सुनामी आने के 1 घंटे पहले ही सारे एलिफेंट्स तीनों भाग गए। और डॉग्स गाले में क्या किए थे भाई, गाले जो वहां पर है गॉल या जो भी पढ़ा जाएगा, द डॉग्स इन द गॉल रिफ्यूज टू गो टू द बीच फॉर देयर डेली एक्सरसाइज, जो डेली एक्सरसाइज के लिए गए ही नहीं वहां पर। अच्छा अब देखते हैं राइटिंग विद द टेक्स्ट है, इसके बाद है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। When he felt that the earthquake, do you think Ignatius immediately worried about a tsunami? Give reasons for your answer. Which sentence in the text tells you that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami struck? इसको हम लोग देख सकते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। No, Ignatius did not think about the tsunami. He thought that it was just an earthquake, so that he took TB. His family did not have time to discuss and plan their course of action. The following sentence tells about the chaos and confusion. 2 of his children caught hold the hands of their mother and father and mother's brother and rushed in the opposite direction. उनको कहाँ पता था सुनामी आने वाली हो, तो अर्थक्वेक जान रहे थे। Which words in the list बिलो, ये तो बुक में भरने वाला है, देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन से देखते हैं, हाउ आर मेघना एंड अल्मासास स्टोरी सिमिलर, तो इसको देखते हैं भाई। तीसरा, मेघना एंड अल्मासास बोथ वेयर लकी, मेघना वाज कैरीड अवे विद द पेरेंट्स एंड अदर पीपल बट शी alone survived, but she was washed ashore by a wave. Almasis climbed onto a log wood. When she opened her eyes, she found herself in a hospital in कमरोटा, कमरोटा में पाई उसने अपने आप को। और 5वां देखते हैं भाई, चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, What are the different ways in which Tilly's parents could have reacted to her behavior? What would you have done if you were in the, कह रहे हैं कि जैसे उसके टिली के पेरेंट्स ने किया था, अगर आप वहां होते तो क्या करते थे। देखते हैं, टिली foresaw the danger of tsunami at once. She became hysterical. Her parents didn't ignore her. They were sure that something wrong must be going to happen. So they all left the beach and were saved. And if I were in place of Tilly's parents, I might have scolded her for making a nonsense situation. शायद हम लोग होते तो डांटते बच्चे को, लेकिन वो लोग उसको फॉलो किए। 5 है, if Tilly's award was to be shared, what do you think she should share it with her parents or geography teacher? अगर टिली के अवार्ड को शेयर करना हो तो आप क्या समझते हैं किसके साथ उसको शेयर करना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ या जियोग्राफी टीचर के साथ? इट इज वेरी ऑब्वियस, टिलीज अवार्ड शुड बी शेयर्ड विद हर जियोग्राफी टीचर। हर पेरेंट्स कुड नॉट गेस दैट सुनामी वाज कमिंग, क्योंकि उसके पेरेंट्स को तो पता भी नहीं चला सुनामी आ रही है। What are the 2 different ideas about why so few animals were killed in that tsunami? Which idea do you find more believable? Very few animals were killed in the tsunami. Perhaps they will feel the tremor much before humans do. Secondly, the animals have a sixth sense. They can guess the coming of disaster and so run away to safer places, higher ground. The idea that the animals are gifted with sixth sense is more believable. They
मूव फास्ट टू गेट ओवर द क्राइसिस। ठीक है, ये हो गया आंसर क्वेश्चन। तो आप इसको एंजॉय कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, वेरी फुल ऑफ मैसेज भी है। इसमें इंस्पिरेशन एक ये है कि जब भी डिजास्टर आए या कोई भी हमको डिफिकल्टी आती है लाइफ में, तो उसको फेस करना चाहिए, चैलेंजेस को फेस करना सीखिए, भागना नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ, जो नॉलेज हो उस नॉलेज को वहाँ पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करिए, जैसे कि टिली ने किया, दूसरे सारे बच्चों ने किया। लास्ट तक अपने करेज को मेंटेन करते रहिए, ओनली देन यू कैन सर्वाइव। इसी के साथ ये लेसन यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये लेसन पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करिएगा, ये लेसन, ये क्लास। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।